Hello students, today we will start our new chapter 4, The Treasure Within of It So Happened book. Every child is a potential achiever and is different from other children in her or his style of learning and area of interest. Read the interview that follows. It is based on a conversation between Miss Bela Raja, editor of Sparsh, a newsletter from the Resource Center, the Valley School, Bangalore, and Mr. Hafiz Contractor, one of the India's leading architects. Every child has a potential achiever, means every child is god gifted, means every child has god gifted talent, मीन्स बट डिफरेंट क्या होता है, हमें उसको चेक करना होता है. हर स्टूडेंट के अंदर, हर चाइल्ड के अंदर कोई ना कोई एक खूबी होती है, एक क्वालिटी होती है. कोई मैथ्स में बहुत अच्छा काम करता है, कोई इंग्लिश में करता है, कोई हिंदी में, कोई ड्राइंग में, कोई फोटोग्राफी में, कोई डांसिंग में, कोई सिंगिंग में. मीन्स हर स्टूडेंट के अंदर, हर चाइल्ड के अंदर एक कैलिबर होता है एंड इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर चिल्ड्रन. और दूसरे चिल्ड्रन से वो लर्निंग में, इंटरेस्ट के एरियाज़ में डिफरेंट होता है. इस चैप्टर में हम कन्वर्सेशन है टू पर्सन्स की. एक बेला राजा एडिटर है एंड सेकंड है आपके मिस्टर हाफिज़ कंट्रैक्टर, द इंडियाज़ लीडिंग आर्किटेक्ट्स. Hafiz contractor was an unhappy school boy. Means when he was studying in a school at that time, he was not happy. He loved doing things. उनको प्रैक्टिकली थिंग्स को करना अच्छा लगता था, बट हेटेड मैकेनिकल लर्निंग. बट उनको जो लर्निंग करना अच्छा नहीं लगता, डिटेस्टेड मीन्स हेटेड. मैथमेटिक्स गेव हिम द शिवर्स. शिवर्स मतलब कांपना, डर लगता था उनको मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से. व्हाट हिज प्रिंसिपल वंस सेड टू हिम इन्फ्लुएंस्ड हिम डीपली. वंस द प्रिंसिपल ऑफ हिज स्कूल called him in his office and said some courageous words to him. That word influenced his life. HC means Hafiz Contractor. BR Bela Raja. These are the wording of Hafiz Contractor. I used to have this terrible nightmare. Only now, over the last 4 to 5 years, it seemed to have disappeared. He said that he used to का मतलब होता है be habitual of, किसी चीज़ की हैबिट हो जाना, कि उसको नाइट मेयर आते थे, रात में डरावने सपने. किस सब्जेक्ट, किसके लिए? मैथमेटिक्स के लिए. These dreams seem to have disappeared only 4 to 5 years बिफोर, कि अब पिछले 4-5 सालों से ऐसे डरावने सपने मैथमेटिक्स के आने बंद हो गए हैं. वट हिज प्रिंसिपल वन सेड टू हिम, बेला राजा, वट नाइटमेयर आर यू टॉकिंग अबाउट एंड वाई डू यू थिंक इट हैज़ डिसअपियर्ड नाउ. नाउ बेला राजा वॉज आस्किंग फ्रॉम हाफिज कंट्रैक्टर अबाउट द नाइटमेयर्स विच ही सॉ. हाफिज कंट्रैक्टर, he used to get continuous nightmares about appearing for a mathematic examination where I did not know anything. Now he must have gotten over it. Psyche means mind. I don't have to think about education and there is absolutely no time to get nightmares. Means in his nightmare he saw that he was appearing for a maths examination and he didn't know the answer of any question in his exams. Now his mind was settled. Now at that time he didn't have fear of the mathematics subject and now he was not thinking about the education. There is absolutely no time to get nightmares. Now he was settled in his life, so he didn't have no nightmares about mathematics. Next page. Tell us something about your earliest memories in school. Now here in this chapter, Bela Raja was asking his earliest memories in school
Hafiz contractor in the first and second year, he was a very good student. In the first and second class, Hafiz contractor was a very good student. When he reached third standard, he lost his interest in studies and he never studied. कि थर्ड स्टैंडर्ड में उसने अपनी स्टडी से इंटरेस्ट ख़त्म हो गया और वो पुअर होते गए, पुअर स्टूडेंट. ही यूज टू बी इंटरेस्टेड इन गेम्स. उनका जो इंटरेस्ट था वो स्टडी में नहीं था, एकेडमिक में नहीं था, किस में था? गेम्स में. रनिंग अराउंड, प्लेइंग जोक्स एंड प्रैंक्स ऑन अदर. दूसरे लोगों के ऊपर कमेंट पास करना. प्रैंक्स मतलब कमेंट पास करते हैं दूसरे. ही वुड कॉपी इन क्लास ड्यूरिंग एग्जाम टाइम. एग्जाम टाइम में वैसे कैसे पास होते थे वो? कॉपी करके, नकल करके. आई वुड ट्राई टू गेट होल्ड ऑफ एग्जामिनेशन पेपर एंड बी प्रिपेयर्ड एंड स्टडी. मीन्स वो कहीं ना कहीं से कोशिश करके आपका जो है एग्जामिनेशन पेपर को ले लेते थे और उसको प्रिपेयर करते थे और स्टडी करके वही पास हो जाते थे. एंड ही कुड नॉट रिमेंबर थिंग्स दैट हैड बीन टोट टू मी इन द क्लास. जो क्लास में उनको पढ़ाया जाता था वो उनको कभी याद नहीं रहता था. क्यों याद नहीं रहता था? क्योंकि ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडी. However, later one sentence spoken to me by my principal changed his life. Means once principal of his school called him in his office and said few words to him. Those words changed his life. When I approached my 11th standard, the principal called me and said, "Look here, son, I have been seeing you from day one. You are a good student, but you never studied. I have never taken care of you till today. Now I can no longer take care of you, so you do it yourself." जब वो 11th स्टैंडर्ड में थे तो प्रिंसिपल सर ने उनको बुलाया, कहा कि बेटा मैं तुम्हें जब फर्स्ट स्टैंडर्ड से डे 1 से जब आप स्कूल में आए थे, डे 1 से आपको देख रहा हूँ, आप अच्छे स्टूडेंट हैं, बट यू नेवर स्टडीड. परंतु कभी आपने पढ़ाई नहीं की. अब तक मैंने आपकी केयर की, अब और केयर मैं नहीं करूँगा, आप अपनी केयर खुद कीजिए. ये प्रिंसिपल सर ने हाफिज़ कंट्रैक्टर को उसके 11th स्टैंडर्ड में बोले. ही टॉक्ड टू मी. मीन्स द प्रिंसिपल सर टॉक्ड टू हाफिज़ कंट्रैक्टर फॉर 5 minutes. यू डोंट हैव योर फादर. उनके फादर नहीं थे, उनकी मदर ने. मदर वर्कड सो हार्ड टू टेक केयर. मतलब उनको पालन पोषण करने में उसकी मदर ने बहुत मेहनत की. and paid all your fees all these years but you have only played games. कि आपकी मदर ने कैसे करके उनकी मदर ने उनकी फ़ीस पे की और but you have only played games. Now you should rise to the occasion and study. Means now you should study. You should study. He used to be a very good sportsman. Means वो good player थे. I had been the senior champion for so many years. I also was the cricket captain. Means वो अपनी लाइफ में कई सालों तक सीनियर चैम्पियन रहे, क्रिकेट के कैप्टन भी रहे. He used to play every game. मतलब हर गेम वो खेलना जानते थे. But that year, उस साल, जिस साल प्रिंसिपल सर ने उनको बुला कर ऑफिस में उन वर्डिंग्स बोली, उस साल he didn't step out onto the field. मतलब उस दिन के बाद से उन्होंने खेल के मैदान में कदम नहीं रखा. I would go for prayers. I would do what eat and study. I normally used to copy and pass. Means वो सिर्फ क्या करते थे? प्रेयर्स करते थे, खाते थे और स्टडी करते थे. Used to copy. पहले क्या करते थे? वो पास होने के लिए कॉपी करते थे, नकल करते थे. But I realized that once I was in SSC. But एक बार जब वो SSC की एग्जामिनेशन दे रहे थे, at that time he could not copy. उस समय वो नकल नहीं कर सकते थे. ठीक है. एंड व्हेन आई गोट अ सेकेंड क्लास, जब उनके कितनी परसेंटेज आई? 50% इन माई SSC. प्रिंसिपल सेड, सन कंसीडर योर सेल्फ एज हैविंग गोट अ डिस्टिंक्शन. डिस्टिंक्शन होता डिफरेंस. दिस इज़ माई मेमोरी ऑफ स्कूल डेज. ये जब इन्होंने अपनी सारी बताई, ये उनकी स्कूल डेज़ की मेमोरीज जो उनको याद थी वो उन्होंने मिस बेला राजा एडिटर को बताई. आई डिड लॉट ऑफ थिंग्स. सी एज फार एज माई थिंग्स आर कंसर्न आई कांट रिमेंबर. भी बहुत कुछ किया लेकिन जितना उनको याद था उन्होंने ये सब बताया. आई फॉरगेट थिंग्स वेरी इजीली. मीन्स वो जल्दी ही चीज़ों को भूल जाते थे. आई रिमेंबर आई हैव टू सी थिंग्स एज अ फोटोग्राफ. आई रीड अ
book and I can remember the matter as a photograph but not through my mind. This is how it works. कि वो जल्द उनकी जो मेमोरी थी वो इतनी शार्प नहीं थी स्कूलिंग टाइम के अंदर, जो भी वो कुछ याद किया जल्दी से भूल जाते थे. बेला राजा. When you were in school and you were doing badly means when Hafiz contractor was in school and he was not a good student, he was performing not good, did the teachers pull you up and how did you feel? क्या टीचर्स तुम्हारी खिंचाई करते थे और तुम्हें कैसा फील होता था? हाफिज़ कंट्रैक्टर. ही नेवर फेल्ट एनीथिंग ऑन बीइंग पुल्ड अप. फेल्ट मतलब कुछ फील नहीं करते थे. अगर कोई टीचर उनको डांट लगा देता था, पनिशमेंट देता था, ही डिडंट माइंड. वो माइंड ही नहीं करते थे, फील नहीं करते थे, बिकॉज ही यूज टू बी सो इंटरेस्टेड इन प्लेइंग. डांट खाई, पनिशमेंट ली, फिर से खेलने चले गए. एंड ही वुड रिसीव अ कैनिंग. कैनिंग होता है पनिशमेंट एवरी वीक. व्हेन यू knew that you had incurred the wrath of your teacher. Incurred the wrath of your teachers means made your teacher furious. टीचर को गुस्सा दिलाना. By not doing your homework or by behaving badly, when you knew you would get a caning, what was the state of your mind? कि जब तुम्हें पता है कि तुम टीचर को काम ना करने से गुस्सा दिलाओगे, तब आपको पनिशमेंट मिलेगी, तब आपके माइंड की क्या स्थिति होती थी? क्या आपके माइंड की सिचुएशन क्या होती थी? स्टेट ऑफ माइंड, जस्ट लिफ्ट अप द हैंड. सिर्फ जैसे ही पनिशमेंट मिलती हाथ आगे बढ़ा देते, लिफ्ट अप द हैंड एंड दे वुड कैन यू. वो आपको पनिशमेंट दे देंगे टीचर. एंड इट वुड हर्ट बैडली, देन आई वुड हैव टू फॉरगेट अबाउट इट. उस समय तो उनको एक बार बुरा लगता था, फिर वो उसको भूल जाते थे. पनिशमेंट टीचर से मिली भी है, बिकॉज ही वुड वॉन्ट टू गो एंड प्ले. क्योंकि उनको खेलने जाना होता था. खेलने जाने के लिए तो माइंड सेट करना पड़ेगा, इंटरेस्ट लेना पड़ेगा. खेल में उनका बहुत इंटरेस्ट था इस वजह से. बेला राजा. यू नेवर फेल्ट इनसिक्योर और थ्रेटन्ड. क्या तुम्हें कभी थ्रेटन्ड, इनसिक्योरिटी फील नहीं हुई? थ्रेटन्ड चेतावनी, डर नहीं लगा? हाफिज़ कंट्रैक्टर. आई वॉज जस्ट इंटरेस्टेड इन प्लेइंग एंड नथिंग एल्स. आई वॉज मोस्ट इंटरेस्टेड इन फनी प्रैंक्स. फनी कमेंट्स पास करना, डिस्ट्रैक्ट करना स्टडीज से. वन डे ही डिडंट वॉन्ट टू स्टडी. एक दिन उनका पढ़ाई करने का मूड नहीं था. So he created a distraction. Distractions means something amusing and pleasurable. Something amusing और pleasurable का मतलब कि दूसरे स्टूडेंट्स को पढ़ाई में डिस्टर्बेंस क्रिएट की उन्होंने. डिस्टर्बेंस इन द क्लास फॉर 1 whole hour. एक पूरा घंटा वो क्या खेलते रहे? चोर सिपाही का गेम. एवरी सैटरडे वी वर अलाउड टू गो इन टू द टाउन टू सी अ मूवी. हर सैटरडे को उनको टाउन में जाने की परमिशन थी मूवी देखने के लिए. सो वट आई कुड डू वॉज हैव नो लंच एंड कलेक्ट मनी फ्रॉम 40 to 50 स्टूडेंट्स. वो 40 to 50 स्टूडेंट से मनी कलेक्ट करते, रन एंड बाय द टिकट्स, और टिकट कलेक्ट करते. ऑन माई वे बैक आई वुड ईट टू माई हार्ट्स कंटेंट. मतलब और फिर लौटते वक्त ईट एज मच एज ही वॉन्टेड. इतना खाते जितना उनका मन करता, जब तक वो सेटिस्फाइड नहीं हो जाते. I used to be the leader of a gang. He was a leader of a gang. We would have gang fights and plan strategies. मतलब गैंग बनाते थे और ग्रुपिंग्स में लड़ाई भी करते थे वो. स्ट्रेटजीज, मेथड्स ऑफ विनिंग फाइट. उनके स्ट्रेटजीज, तो स्ट्रेटजीज मतलब उनके फाइट को विन करने की मेथड्स होते थे उनके पास किसी भी प्रकार से. These things used to interest me more than my academics. इन चीज़ों में उनका पढ़ाई से ज़्यादा इंटरेस्ट होता था गेम्स के अंदर. स्टूडेंट्स यूज टू बुक माई टेक्स्ट बुक फॉर द फॉलोइंग ईयर बिकॉज दे वर ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू. आई प्रोबेबली ओपन दैम 1 day बिफोर एग्जाम्स. जो स्टूडेंट्स थे उनके जूनियर स्टूडेंट्स बुकड हिज बुक्स, टेक्स्ट बुक्स फॉर द फॉलोइंग ईयर बिकॉज दे वर न्यू एंड ही और वो पूरा साल बुक ही नहीं खोलते थे, सिर्फ एग्जाम से एक दिन पहले ही खोलते थे. इसलिए ही स्टम्बल्ड ऑन आर्किटेक्चर्स बिकॉज ही न्यू द लिटिल फ्रेंच एंड लेस जर्मन. ही वॉज ऑफ बीट इवन इन द प्रैंक्स एंड ही प्लेड ऑन अदर्स. स्टम्बल्ड ऑन का क्या मीनिंग है यहाँ पे आपका नीचे दिया हुआ है? गोट इन टू आर्किटेक्ट्स बाय चांस. की मतलब जो आर्किटेक्ट की फील्ड में वो गए हैं वो बाय चांस गए हैं, उनकी कोई प्लानिंग नहीं थी. आप ये कह सकते हो कि भगवान की अच्छी नज़र थी उनके ऊपर कि
ठीक है. ही वॉज ऑफ बीट इवन इन द ऑफ बीट मीन्स अनयूजुअल और अनकन्वेंशनल. अनकन्वेंशनल इसका मीनिंग है pranks, and he played on other. When he found his calling there was no looking back. जब he found his calling, कोई उनको बुला लेता, there was no looking back, पीछे मुड़कर नहीं देखते थे. बेला राजा, how did you get into the field of architects, कि आप इस फील्ड में आर्किटेक्ट की फील्ड में कैसे आए. In the college for architect nobody who had got below 80 to 85% was allowed to enter, कि जिसके 80 to 85% मार्क्स ही आते थे वही इसके अंदर एंटर करते थे इस फील्ड के अंदर. बट ही हैड ओनली 50% मार्क्स. ही वॉन्टेड टू ज्वाइन द आर्मी. ही गोट हिज एडमिशन लेटर बट माई आंट टोर इट अप. उनको एडमिशन लेटर भी ले लिया था उन्होंने, बट जो हिज आंट है टोर दैट लेटर, उस लेटर को फाड़ दिया. देन ही डिसाइडेड दैट ही वॉन्टेड टू ज्वाइन द पुलिस फोर्स. माई मदर सेड डोंट ज्वाइन द पुलिस फोर्स, just do your graduation. Then his mother wanted that he should do his graduation, so he joined Jai Hind College in Bombay. There I was either to take French or German. उनमें से उनको फ्रेंच लेनी थी या जर्मन लेनी थी. Though he had studied French for 7 years, फ्रेंच लैंग्वेज उन्होंने 7 years तक स्टडी की, but he didn't know 7 words of French, so he took German. Then my German teacher died. The college told me that he would change the college or take French. तो कॉलेज वालों ने क्या कहा कि या तो अपना सब्जेक्ट बदल लो या कॉलेज बदल लो. अब कॉलेज कैसे बदलें, और कहीं तो उनको एडमिशन नहीं मिलता था, तो उन्होंने क्या किया, जर्मन ही, क्या कि वो जर्मन ही लेंगे. उसके बाद नाउ who would give me the permission in other college, I had got admission in Jai Hind College by influence, मतलब by chance, ना चाहते हुए भी उसी कॉलेज में उनको रहना पड़ा. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स. दैट्स ऑल फॉर टुडे. आफ्टर लिसनिंग दिस वीडियो रीड द 4 pages of this lesson thoroughly.